Hi Manoj, hi Nilesh, hi Santosh, and Gaurav. नमस्ते सर। Good afternoon, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon to you all. So, welcome to the session of climate change and adaptation. So, hope you are doing well on Dasara. Sir, Yes, sir. sir. So, for the training, I think we can use the language mix of Hindi and English. Will it be okay? Okay. Yes, sir. Yeah, Yes, sir. Thank you. So, before starting the training, we will just say some ground rules. You know, so like we will keep our videos on and mute the microphones while not speaking. You can raise your hand if you want to speak, and you can react and write in the chat box. Yeah. And I will prefer that you will unmute your mic and respond to me because we are only four. So will that be okay? Okay. yes, sir. Yeah. Yes, sir. Thank Yes, sir. you. So just look at the picture and see what this picture conveys to you. Hi, Manoj. Yes, sir. Yeah. Sir, Sir, this picture is a climate change in surrounding and sign climate crisis and एक side is sun heat wave and Yeah. You can use flooding. Hindi or English. Manoj, you Sir, can use Hindi or yes. English. Thank you. Sir, So sir, Santosh has raised एक his hand. Hi, Santosh. You yes. can add some points if you want. sir. एक साइड पे सर पिक्चर्स में दिख रहा है कि सूरज मतलब हीट वेव चल रहा है और एक साइड में ऐसा लग रहा है कि मतलब बारिश से पानी रेनफॉल ज्यादा हो रहा है Mhm. और इंडस्ट्रीज एरिया का जो पॉपुलेशन है जो वेस्ट वाटर जो निकल रहा है वो कहीं ना कहीं मतलब वाटर सोर्स है जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल को इफेक्ट कर रहा Yeah. है और Thank है ना you. वो जी Thank you, Manoj. Now Santosh and Gaurav can just add one points if they wish to. Actually, sir, these two governments actually seeing the changes in the climate, and they are surprisingly watching the happenings around them. That is from the sunlight and rainfall, and huge flood is there. Like that, they are actually surprising by seeing the changes around them. Okay. So thank you, Santosh. So Gaurav, we will have you in the next सर round. मेरे को ये लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दो फार्मर्स हैं वो Yeah. देख रहे हैं कि जो आसपास में हो रहा है कि थंडर स्टॉर्म है, पोल्यूशन है, रेनफॉल हो रहा है, वो सब चीजों Mhm. किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है उस चीज को लेके वो थोड़ा सा Mhm. कंसर्न नजर आ रहे हैं Yeah. और वो Yeah. कंसर्न है कि So उनकी एग्रीकल्चर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। yeah. So you all are right. So this actually force us to think that is climate change real because everything is happening around us, you know. So could you just think of when you first experienced climate change? Yeah, Gaurav. सर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरे को जब मैं क्लाइमेट चेंज हम लोगों ने रिलायंस फाउंडेशन में आके सुना तब हमने फील करना शुरू किया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फिर हम उसको रियलाइज करते हैं। मैं जैसे वहां जहाँ का रहने वाला हूँ वहां के अपने रियलाइजेशन लूं सोचता हूँ उसके बारे में
तो मेरे को दिखाई देता है कि जब मैं बचपन में था तो वहां पे वेदर बहुत अच्छा हुआ करता था। हम्म, अब अब मैं देखता हूँ 40 साल के बाद, तो देखता हूँ तो वो एक मेरे को बहुत ज्यादा गर्म माहौल वहां पे दिखाई देता है, इरेटिक रेनफॉल नजर आता है। तो मेरे को अब लगता है कि हाँ, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। Okay, thank you. Nilesh ji, you can add one point, just one. जब मैं अपने घर पे था सर, छोटे में, Yeah. तो Uh-huh. गर्मियों में भी जब छत पे सोते थे तो रजाई ओढ़ के सोते थे। अभी Mm-hmm. जाते हैं तो घर में पंखा चला के, कूलर चला के। Mm-hmm. हाँ, सो ये दोनों ही जो बोल रहे हैं, गौरव और नीलेश, बोल रहे हैं कि राइज इन टेम्परेचर जो है वो आपने एक्सपीरियंस किया है। तो इस तरीके से बहुत सारे वेज हैं जिसमें हम क्लाइमेट चेंज को एक्सपीरियंस करते हैं। और आपने ऑलरेडी आंसर भी दिया कि हाउ यू आर अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज। जैसे ज्यादा गर्मी होती है तो हम पंखा चलाते हैं, ठीक है। सो इस ट्रेनिंग का अपना जो ऑब्जेक्टिव है, we will discuss about climate change and its impact of climate change on rural livelihoods, and particularly in agriculture. And at the end of the session, you will be able to relate with climate change in a better way and identify vulnerabilities related to livelihoods. And you will also be able to identify how to mitigate those vulnerabilities. you know so have you lost the slides? यस सर। Yeah, so technical glitches are expected. So I will take your 15 minutes time to understand this, and we have designed that we will discuss around understanding climate change, adaptation and mitigation and activities. You will be listing down activities, about probable interventions which can be done at village level. Then we will make action plan. So how many awareness events you will be organizing? मम्मा को बता क्या कौन सी उठाई? Hi Gaurav, are you telling something? And we will close after feedback. कंटिन्यू। Yeah. So as you all have shared about the impact of climate change in day-to-day life, so do you think it also impact rural livelihoods? And I think, as we all know and we have already discussed, that in villages there are three major livelihoods: agriculture, animal husbandry, and agriculture wage labor mostly. And some people migrate out of the villages. So, how you see climate change can impact agriculture, animal husbandry, or wage labor? ड्रास्टिकली ड्रास्टिकली इम्पैक्टेड। कैसे यस सर। इम्पैक्ट करता है? कुछ क्योंकि एग्जांपल्स अगर दे पाए। क्योंकि जो भी एग्रीकल्चर है या जो भी क्रॉप है, वो हम्म सारा क्रॉप जो है सीजन और जो है टेम्परेचर और इन सब चीज पे ही डिपेंडेंट है। जब हम्म इनमें चेंज होता है तो वो सारी चीजों में चेंज हो जाता है। हम्म इसीलिए ये सीधा 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 इम्पेक्ट करता है एग्रीकल्चर को। हाँ, संतोष बताइए, आप एनिमल हस्बेंड्री में कैसे इम्पैक्ट हो सकता है या वेज लेबर में? कुछ एडिशनल पॉइंट है वो ऐड करेंगे।
या संतोष? ये सर एनिमल हस्बेंड्री में जो ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, हम्म। एक तो उनका सर्वाइवल भी कम हो जाता है, पर्टिकुलरली इन द समर। यस। नंबर वन। नंबर टू, द अवेलेबिलिटी फॉर ग्रीन फोडर ऑल्सो नॉट अवेलेबल। और एक चीज है कि उसमें एक्चुअली जो लाइवलीहुड के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, मोस्टली द फार्मर्स सोल्ड आउट ड्यूरिंग द peak summer. The availability of drinking water, fodder हम्म। is very less. So to या uh, वेरी ट्रू। जैसा आप बोल रहे हो कि एग्रीकल्चर में इन्होंने इम्पैक्ट बताया कि किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ने से, ड्रॉट और फ्लड से, नीलेश ने बताया कि इम्पैक्ट होता है। और एनिमल हस्बेंड्री में भी आप बता रहे हैं कि ड्यू टू एक्सट्रीम हीट पीने का पानी अवेलेबल नहीं होता है, जिसके लिए लोगों को जानवर बेचने भी पड़ते हैं। बेचना भी पड़ता है। हम्म। हाय गौरव। यस सर। या सर यू कैन ऐड। हम्म। मैं आई थिंक कि मतलब जो जैसे हम लोग बहुत सारे जो फील्ड में हम लोग काम करते हैं, गांव में काम करते हैं, तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ही सब लोगों का कुछ ना कुछ एक प्राइमरी लाइवलीहुड है। और अगर उसमें क्लाइमेट चेंज के कारण से लॉसेस होते हैं या क्रॉप फेलियर होता है या ड्रॉट पड़ता है, तो लोगों को जनरली होता है माइग्रेशन करना पड़ता है। वो हम्म। जाते हैं फिर बड़े शहरों में जाके लेबर करते हैं वहां पर। तो हम्म। एक उनके ऊपर भी एक माइग्रेशन का असर आता है, जो उस पर भी बेज लेबर पर फर्क पड़ता है। हम्म। हम्म। मनोज, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं सर, मेरे जो पॉइंट थे वो गौरव सर ने बता दिया है। थैंक यू। मैं, हाँ सर। थैंक यू मनोज। तो फिर आगे यस। चलते हैं और हम देखते हैं कि जो ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होता है रूरल लाइवलीहुड्स पे, हाउ इट कैन बी मिटिगेटेड। और जैसा हमने सब्जेक्ट में ही कवर करने का सोच रहे थे कि वाटर इज अ की पिवट। हाय नीलेश जी। वो एनी अदर में मैं बोलना चाह रहा था, हाँ हाँ। ये इस सब के साथ जब ये मौसम और ये सारी चीजें होती हैं, तो एनी अदर में मैं कह रहा हूँ ये डिस्ट्रेस, टेंशन जो दिख रहा था आपका फर्स्ट फोटो में, दोनों हस्बैंड वाइफ थे या भी जो भी थे, हम्म। उनका जो फोटो था फर्स्ट फोटो कि वो परेशान हम्म। लग रहे हैं, तो हम्म। ये सारा फिर जो है मेंटल और फिजिकल और ये सब परेशानियां क्रिएट भी कर देता है। वेज लेबर हम्म। तो हो जाता है कि आदमी के पास हम्म। कुछ काम नहीं है तो वो यहाँ वहां जाएगा। एनी हम्म। अदर वेज में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता हम्म। है और वो तो परेशान हो जाता है। हम्म। अल्टीमेटली वो मतलब जो परेशानी का सबब बनता है ये सारी चीजें, हम्म। मेंटल डिस्ट्रेस बोल लें हम्म। या उसको क्या बोले तो बोल सकते हैं, वो आपने ऐड कर सकते हैं। आप लोगों ने जितने भी बताए, देखिए उस सबको मैं एक पिक्चर से समराइज कर रहा हूँ। अच्छा, जस्ट टू चेक, आप लोगों का वीडियो ऑन है क्या? मैं देख नहीं पा रहा हूँ। इफ पॉसिबल वीडियो अगर ऑन कर लेंगे तो सही रहेगा, आई टू आई कांटेक्ट बनाने में, है ना। दिस इज अबाउट फॉलोइंग ग्राउंड रूल्स। हमने ग्राउंड रूल्स बनाए थे, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पा रहे थे। तो देखिए, अभी ये जो पिक्चर है, हमने एक सेंट्रल पिक्चर देखा था थीम में। बाकी आप लोगों ने जितने चीजें कही, वो सारी चीजों को ये कवर कर रहा है। ठीक है। अब देखो कि कैश का स्ट्रेस होता है, जानवर को लेके माइग्रेट करना पड़ता है लोगों को। बहुत बार फसल बर्बाद हो जाती है ड्यू टू ड्रॉट एंड फ्लड कंडीशंस। ठीक है। तो ये सारी वस्तु स्थिति है। तो इससे निपटने के लिए, अडेप्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं। तो आप लोग चूंकि फील्ड में काम करते हैं, है ना, तो आप सभी ऑलरेडी इस इंटरवेंशन से अवेयर होंगे कि किस तरीके का काम इसके लिए हम करते हैं। ठीक है। तो मैं जस्ट उसको एक ग्लिम्स बताने का कोशिश करता हूं। ठीक है। ये एक्टिविटीज से, जैसे कॉमन लैंड में प्लांटेशन करना है। ठीक है। और आप लोग बता सकते हैं कि और क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं गांव में।
इसके कॉमन प्लांटेशन हो गया सर, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के काम हो गए। हम्म, ठीक है। तो चूंकि हम जो सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग वाटर एज ए की पिवट, सो वाटर रिलेटेड इंटरवेंशंस को थोड़ा हमने फोकस किया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें सर जी एक सर। चीज आप पहले भी दिखाए थे फोटो, इसमें हाँ हाँ। जो प्लानिंग का एक फोटो डालने से भी अच्छा होता है, प्लानिंग का जो श्योर। हमारा एक्चुअली मेजर एक्टिविटीज रहता है, जो गांव के यस। साथ काम करते हैं ना, गांव को लेके हम काम करते हैं, और मेन स्टेक होल्डर कम्युनिटी है, उसका जो हम्म भी मतलब हम VCRP वगैरह जो भी VDP बनाते हैं, हम्म। वो फोटो है कि गांव के साथ होना चाहिए। श्योर एक तो श्योर। प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ये सब एक्टिविटीज हम लोग करते हैं। हम्म। तो और डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या है, जो 3R बोलते हैं, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है। तो एक तो है कि वाटर को हार्वेस्ट करना, ठीक है। वाटर का इफिशिएंट यूज से वाटर का कंजम्पशन को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक। और ये ग्रे वाटर मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, उससे किचन गार्डन्स में इसको यूज किया जा सकता है, इसका जो पानी अगर ये होता है तो। और ये विलेज को हेल्प करता है इन ऑर्डर टू मूव टुवर्ड्स क्लाइमेट रेजिलियंस, ठीक है। फिर हम देख सकते हैं कि क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर किस तरीके से हेल्प कर सकता है किसानों को, ठीक है। तो अभी एक विलेज को देखिए, कंसीडर दिस विलेज की जहां पे 100 हाउस होल्ड का एक विलेज है, ठीक है। 250 हेक्टेयर्स ऑफ टोटल लैंड, out of which only 25% land is irrigated and 125 hectare agriculture land is there in the village. 50 हेक्टेयर उसमें डिप्लीटेड फॉरेस्ट है और 25 हेक्टेयर वेस्ट लैंड है। 50 हाउस होल्ड डेयरी में एंगेज्ड हैं और 50 गोट रेयरिंग में एंगेज्ड है, ठीक है। तो जस्ट टेक 2 मिनट्स टू रिफ्लेक्ट कि इस गांव में अगर इंटरवेंशन करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। क्या क्या इंटरवेंशन पॉइंट्स होंगे, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। अच्छा, चार्ट बॉक्स में देखिए। हम्म। तब तक कोई अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं कि किस तरीके का इंटरवेंशन हम कर सकते हैं। हम्म तो जैसे फॉरेस्ट्री पे जा सकते हैं, ठीक है, जो हम्म वेस्टलैंड है, वेस्टलैंड को हम्म हम लोग कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं। और मतलब जैसे उसमें जो हॉर्टिकल्चर के प्लांट वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ हम्म जो है, जो जैसे हमारे पास देख रहे हैं कि डेयरी पे भी लोग हैं, गोड रेयरिंग में भी गांव वाले वो हो रहे हैं, तो फॉडर्ड लैंड डेवलपमेंट पे भी कुछ एरिया जो है हम उसमें जा सकते हैं, हम्म। ठीक है। साथ में तो जो ऑल, थैंक यू गौरव, और बाकी लोगों ने भी हम्म, कंट्रीब्यूट किया है। संतोष कह रहे हैं कि प्लांटेशन इलेज VCRP, है ना। मनोज बोल रहे हैं सॉइल वाटर कंजर्वेशन का वर्क। सो थैंक यू ऑल। मुझे लगता है कि यू हैव गॉट इट वेरी वेल, है ना, कि किस तरीके का इंटरवेंशन एक विलेज लेवल में हो सकता है इन ऑर्डर टू इंप्रूव क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ द विलेज, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया, हम लोगों ने जो प्लान किया था उसमें से कितना कवर कर पाए हम लोग।
So we discussed about all the 3 points, and मुझे लगा कि अब जिस तरीके से आपने बताया है ना, you all are able to identify interventions for improving climate resilience at village level, है ना? तो इसमें ये हमने जो ऑब्जेक्टिव लिया था उसको कवर कर पाए हम लोग. यस सर. बिल्कुल. थैंक यू. तो जस्ट आप चैट में लिख सकते हैं कि अभी आने वाले नेक्स्ट मंथ में हाउ मेनी अवेयरनेस जनरेशन इवेंट यू विल ऑर्गेनाइज एट विलेज लेवल रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन. ठीक है. और किस तरीके का सपोर्ट आपको चाहिए, सपोर्ट रिक्वायर्ड में आप ऐसे बता सकते हैं, बाकी चैट में लिख सकते हैं. हाँ, अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं. इसमें मान लो मैंने लिखा है 2, तो इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इसी तरीके से अवेयरनेस कार्यक्रम ब्लेज लेवल पे अगर अपने को करने हैं या ब्लेज लेवल पे हमें करने का अपन सोच रहे हैं, तो फिर वो जो फील्ड स्टाफ टीम है उनका और डीपीएम जो है वो उस तरीके से विलेज लेवल के लोगों को उनका सपोर्ट रहेगा, तो हम फिर उसमें भी क्लस्टर जैसे कि एक साथ 4 गांव के लोगों को बिठाल के उनका सब अवेयरनेस कार्यक्रम जनरेशन कर दें. क्लाइमेट चैंपियन के साथ साथ उस गांव के और भी जो की फार्मर्स हैं, इंडिविजुअल विलेज में जाने, कुछ विलेज में भी कर सकते हैं कि मान लो 4-5 गांव का इकट्ठा एक ही गांव में हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, कर सकते हैं यदि फील्ड स्टाफ और वो लोग सपोर्ट करें तो. ठीक है, वेल टेकन. और बाकी लोगों ने तो चैट में डाला है, और इट वुड बी बेटर कि वो मेल में शेयर कर देंगे अपन को, तो वो देख लेंगे. सो ये 15 मिनट्स का एक ट्रेनिंग सेशन जो अपना था, सो हाउ यू फाइंड इट, ये कैसा लगा आपको? जस्ट से इफ यू विल से इन 1 or 2 words. मतलब सर टू द पॉइंट था, है ना? टू द पॉइंट था और थोड़ा क्रिस्पी था, मतलब अटैच था पूरा क्लाइमेट रिजिलियंस, क्लाइमेट चेंज को लेके. मतलब हमने इधर उधर नहीं गए, हम अपने टॉपिक से कहीं नहीं भटके हैं. लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम ट्रेनिंग देते देते फ्लो में बोल जाते, बहुत सारा चला जाता है इधर उधर, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया. तो होप आप लोग इसको अच्छे तरीके से गांव में ऑर्गेनाइज कर पाएंगे. ठीक है. एंड यू कैन रीच आउट टू मी फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट. जो एक नीलेश जी ने शेयर किया कि किस तरीके से बाकी स्टेक होल्डर्स का भी एक ओरिएंटेशन का जरूरत होगा, तो सर्टेनली वी विल प्लान फॉर दैट. चलिए, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग एंड ऑल द बेस्ट. ओके, Thank you, sir. Thank या you. बाय. थैंक यू Bye सर, bye. थैंक यू.